Welcome back. I am Vikas Sharma, working as Assistant Professor in the Department of Pharmaceutical Chemistry, Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Our today's topic is multiple choice questions related to gastrointestinal agents. GIT agents से related multiple choice questions हम discuss करेंगे. These are the part of syllabus of PharmChem 1 for the diploma in pharmacy students. So start with the question. Inorganic substance which are used to treat gastrointestinal problems. Here four options are given. Inorganic substance which are used to treat GIT problems. क्वेश्चन को समझे आप कि आपको उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बताए गए हैं टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन. प्रोडक्ट which may alter acidity. Correct option. Saline cathartics are also the part of GIT agents. Adsorbents, both three are the part of GIT agents, gastrointestinal agents. So the correct option is option number D, all of the above. Question number 2. Cathartics are the drug substance which are used to treat. Cathartics are the drug substance which are used to treat. Cathartics क्या treat करने के लिए use किए जाते हैं? Four options are there: acidity, constipation, GI irritation, and IBD, intestinal bowel disease. So the correct option here, correct option is constipation. Cathartics are used to treat constipation. Question number 3. Drugs which are able to neutralize the alkaline body fluid. Drugs, क्वेश्चन को समझें आप, it is a very common question. Drugs which are able to neutralize the alkaline body fluids, particularly blood, are known as. उन ड्रग्स को क्या कहा जाता है जो न्यूट्रलाइज करने के लिए काम की जाती है बॉडी फ्लूइड्स को, स्पेशली ब्लड को न्यूट्रलाइज करने के लिए. सो फोर ऑप्शंस आर देयर. फर्स्ट ऑप्शन इज एसिड, सेकंड ऑप्शन इज एक्सपेक्टोरेंट, थर्ड ऑप्शन इज सिस्टेमिक एसिडिफायर, एंड लास्ट ऑप्शन इज protective. So the correct option here, correct option is systemic acidifiers. Systemic acidifiers are used to neutralize the alkaline body fluids. So moving to the next question. This is a fill in the blanks type of MCQ. Dash is a condition in which the stomach does not produce hydrochloric acid. ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसमें स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन नहीं कर पाता? Four options are given here: achlorhydria, typhoid, IBD, intestinal bowel disease, and last option is hypertension. So the GIT disease this is only one, achlorhydria, and this is the condition in which stomach does not produce HCl, hydrochloric acid. So moving to the next question. Ideal characteristics of antacids has been given. ऑप्शंस के अंदर आपको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटासिड्स गिवन है एंड मार्क द रॉन्ग वन. आपको जो गलत कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको बतानी है. सो इन द फर्स्ट ऑप्शन, एंटासिड्स शुड बफर इन द पीएच रेंज 4 to 6. ठीक बात है. इट शुड नॉट बी अ लक्सेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन. इट इज ऑल्सो करेक्ट. इट शुड बी अनस्टेबल. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट देखने को मिलेगा क्योंकि दिस शुड बी स्टेबल. एंड लास्ट ऑप्शन पर एक बार निगाह कर लेते हैं. इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट. So A, B and D are the बिल्कुल correct options, but the wrong option is C. It should be unstable. So for the question number 5, option number C is the correct answer. Next question. What are the synonyms of sodium bicarbonate? What are the synonyms of sodium bicarbonate? So here four options are given once again. China clay and meetha soda. Option number A. Second one is margarine salt and baking soda. Third option is baking soda and meetha soda. And last option is caopoctate and bicarb. So आपने अपने सिलेबस के अंदर पढ़ा होगा कि China clay is the synonym of another compound. Margarine salt is also synonym of another compound. And here caopoctate is also the synonym of another compound. So आपका बचता कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C. Baking soda and meetha soda are the synonyms of sodium bicarbonate. Baking soda is also used in the Indian kitchens. So option C is the correct answer for sodium bicarbonate. Moving to the next question. Here in this question, a multiple choice question. In this question, a chemical reaction is given. एक chemical reaction आपके सामने है और आपको बताना है कि product क्या है. What is the M? So moving to the question, M product is formed. एक M प्रोडक्ट बना है ड्यूरिंग द रिएक्शन. नीचे एक रिएक्शन दी गई है जिसमें केमिकल प्रोडक्ट बना है.
आपको उस एम प्रोडक्ट का नेम स्पेसिफाई करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ एम प्रोडक्ट। तो आप रिएक्शन एक बार स्टडी करते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आपने वाटर के साथ कराई है, व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद डिस्टिल्ड वाटर, तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HCl एक कंपाउंड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के अलग हो गया है। जब HCl बना है, आप इसको जज कर सकते हैं कि 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका बचता क्या है आपके कंपाउंड के अंदर? आपके कंपाउंड के अंदर बचा है अभी एल्यूमिनियम प्लस OH ग्रुप। एल्यूमिनियम प्लस OH ग्रुप्स आपके कंपाउंड के अंदर बचे हैं। तो कहीं ना कहीं यही दोनों आपके कंपाउंड M के अंदर आपको मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? वो ऑप्शन जिसके अंदर एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो। So coming to the options, first option is aluminium carbonate, second option is aluminium hydroxide, and aluminium hydroxide is the correct answer for product M. Aluminium hydroxide. Moving to the next question, select the correct category of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म के 1 सिलेबस में आपने 2 या 3 जगह पढ़ा होगा। आपको बताना है कि करेक्ट कैटेगरीज कौन सी हैं, वेदर इट इज द पार्ट ऑफ एंटासिड एंड एक्सपेक्टोरेंट। एंटासिड एंड एक्सपेक्टोरेंट के अंदर आपने पढ़ा है, एस्ट्रिंजेंट या प्रोटेक्टिव्स के अंदर आपने पढ़ा है। आपको बताना है कि आपने कहां पर पढ़ा है। आपने एंटासिड्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट देखा होगा, लेकिन एक्सपेक्टोरेंट के अंदर नहीं देखा है। आपने एस्ट्रिंजेंट के अंदर एंड प्रोटेक्टिव्स के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पढ़ा होगा। कैथार्टिक्स एंड डेंटल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर जरूर पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कैथार्टिक्स के अंदर नहीं आता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपने एंटासिड्स के अंदर देखा है, डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर देखा है, इन दोनों को कंबाइन करके दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। एंड एंटासिड्स एंड डेंटल प्रोडक्ट्स कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। आपको उस केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उसका करेक्ट नेम पर टिक करना है, सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड मार्क इट्स करेक्ट नेम। आपको स्ट्रक्चर दिया गया, आप स्ट्रक्चर के अंदर अभी देख सकते हैं खुद से। आप स्ट्रक्चर को एक बार देखने की कोशिश कीजिए क्या क्या है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का एटम है यहाँ पर। फॉस्फोरस भी दिया गया है और 4 एटम्स ऑफ 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर आल्सो गिवन। तो आप क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है। इट मींस आपका क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो आप ऑप्शंस पर जाएंगे और ढूंढेंगे कि कहां पर आपका एल्यूमिनियम फॉस्फेट दिया गया है। सो कैल्शियम कार्बोनेट रॉन्ग आंसर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रॉन्ग आंसर वंस अगेन, एंड ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम फॉस्फेट आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, एंड दिस इज द करेक्ट मल्टीपल चॉइस आंसर फॉर द ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound is used as antacid and also liberates carbon dioxide। नीचे आपको 4 एग्जांपल्स दिए गए ऑप्शंस के अंदर। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड एक एंटासिड की तरह भी काम करता है, साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीव करता है। तो यहाँ पर आपको सोचने की बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन से कंपाउंड से रिलीव करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वो कंपाउंड रिलीव करेंगे जिनके अंदर ये वाले एटम्स प्रेजेंट हों, स्पेसिफिकली कार्बोनेट्स प्रेजेंट हों। तो आप अपने ऑप्शंस की तरफ जाएंगे और ये जज करेंगे कि किस ऑप्शन के अंदर आपको कार्बोनेट्स प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो कार्बोनेट, इट इज रॉन्ग आंसर। एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज आल्सो रॉन्ग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी आपको कार्बोनेट्स नहीं दिखेगा, इट इज आल्सो रॉन्ग आंसर। एंड ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। In the next question, one gastrointestinal agent is also known as Epsom salt. Mark its chemical name. GIT एजेंट पर अभी हम MCQ के डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपने कंपाउंड पढ़ा था जिसका सिनोनियम आपने देखा था इप्सॉन सॉल्ट। GIT एजेंट्स के अंदर एक कंपाउंड है जिसको इप्सॉन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको जज करना है, ऑप्शंस को चेक करना है, बताना है कि किस कंपाउंड को इप्सॉन सॉल्ट बोला जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। आप अपना ब्रेन अप्लाई कीजिए, अपनी नॉलेज अप्लाई कीजिए जो आपने क्लासरूम के अंदर देखा है कि इप्सॉन सॉल्ट किसको बोला जाता है। तो इप्सॉन सॉल्ट इज द करेक्ट नेम ऑफ मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। आप बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट इज ऑल्सो नोन एज इप्सॉन सॉल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक प्रिपरेटिव रिएक्शन दी गई है। आपने प्रिपरेशन पढ़ी है कंपाउंड्स की अपने सिलेबस के अंदर। प्रिपरेशन की रिएक्शन है जिसमें आपको बताना है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स गिवन है। हमने एक क्वेश्चन में पीछे भी प्रिपरेशन देखी थी जहां पर आपके प्रोडक्ट्स का पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स गिवन है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए। व्हेन एक्स इज हीटेड
आप एक बार क्वेश्चन देखें कि व्हेन X इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड, एक ऐसा कंपाउंड है जिसको आप हीट करते हैं जब तक वो रेड ब्लॉक नहीं हो जाए तब तक आप उसको हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको उसका नाम बताना है, सेलेक्ट द नेम ऑफ X। तो उस कंपाउंड ने क्या क्या प्रोड्यूस किया है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल बताना है कि व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा, एक बात साफ हो जाती है क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कि स्टार्टिंग मटेरियल ने डिकम्पोज होने के बाद हमें दो कंपाउंड दिए हैं। फर्स्ट कंपाउंड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एंड द सेकंड कंपाउंड इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उस कंपाउंड के अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, मैग्नीशियम भी है एंड कार्बोनेट्स भी है। सो स्टडी द क्वेश्चन। आप अपना ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए, ऑप्शंस को आप एक बार देखिए, आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज मैग्नीशियम कार्बोनेट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, CO2 आयंस भी है। आप जब इसको हीट करेंगे रेड हीट होने तक, देन इट डिकम्पोज इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे के आप ऑप्शंस पर एक बार देख सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया गया है, दैट इज द रॉन्ग आंसर। एल्यूमिनियम फॉस्फेट दिया गया है, यहाँ पर भी कार्बोनेट्स नहीं है, मैग्नीज भी नहीं है, इट इज द रॉन्ग आंसर। देन मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, यहाँ पर कार्बोनेट्स बनने का कोई चांस नहीं है, इट इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया। डायरिया इज अ सीरियस कंडीशन विद लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। डायरिया एक यहाँ पर बताया, एक स्टेटमेंट आपको दी गई है कि डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाता है बॉडी से। तो आपको ये जज करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है चेक करने के बाद में वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपने अपनी थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, एंड दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन कि डायरिया के अंदर हाँ आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लॉस ऑफ फ्लूइड्स होता है। आगे ऑप्शंस दिए गए, आप उनको चेक कर सकते हैं, बट ट्रू, दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू, यू कैन गो फॉर द ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी-डायरियल कंपाउंड। एंटी-डायरियल कंपाउंड्स हैज बीन गिवन बिलो, सेलेक्ट द रॉन्ग वन। नीचे चार ऑप्शंस हैं जिनमें से तीन ऑप्शंस आपके बिल्कुल ठीक एंटी-डायरियल कंपाउंड्स हैं, लेकिन एक ऑप्शन गलत एंटी-डायरियल कंपाउंड्स है जो कि एंटी-डायरियल कंपाउंड नहीं है। आपको चेक करना है कि विच वन इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बिस्मथ सब कार्बोनेट। बिस्मथ सब कार्बोनेट आपके सिलेबस के अंदर भी आपने देखा है कि इट इज एन एंटी-डायरियल कंपाउंड। सेकंड ऑप्शन इज टेल्क। Third option is kaolin. Kaolin is also known as antidiarrheal compound. Last option is loperamide. Loperamide की छोटी छोटी टैबलेट्स मार्केट के अंदर काफी सारी आती हैं, and these are also used as antidiarrheal compound. तो आपका ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी is the correct answer, which is not used as antidiarrheal compound. It is the correct option, option number B. Moving to the next question, light kaolin. ये क्वेश्चन लाइट काओलिन से है। लाइट काओलिन आपने एंटी डायरियल कंपाउंड्स के अंदर देखा है। लाइट काओलिन इज आल्सो नेम्ड एज, लाइट काओलिन का आपको सिनोनियम बताना है। आपने अपने सिलेबस के अंदर देखा होगा लाइट काओलिन का क्या होता है सिनोनियम। आपको चार ऑप्शन दिए गए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड बिस्मथ सब कार्बोनेट। तो इन चार ऑप्शंस को देखने के बाद में बता सकते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर, थ्योरी क्लासेस में, कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सिनोनियम ऑफ लाइट काओलिन। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट। ये आपकी किताबों से डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने लिया एज एन एमसीक्यू। आपने जिस भी बच्चों ने सिलेबस से किताबें पढ़ी होंगी, तो किताबों में स्टार्टिंग लाइन होती है जहां पर आप कैथार्टिक्स पढ़ते हैं, लग्जेटिव्स पढ़ते हैं, तो लग्जेटिव्स आर डैश कैथार्टिक्स। आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए, माइल्ड, रेयरली, क्रियोली या ऑल ऑफ द अबव। तो आपने जिस भी बच्चे ने सिलेबस में किताबें देखी होंगी, फार्मकेम 1 के लिए लग्जेटिव्स पढ़े, वहां पर स्टार्टिंग लाइन यही होती है कि लग्जेटिव्स आर माइल्ड कैथार्टिक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। दिस इज अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर बुक। लग्जेटिव्स आर नोन एज, सॉरी, लग्जेटिव्स आर माइल्ड कैथार्टिक्स। Coming to the next question, this is a fill in the blanks type of MCQ. Dash और purgatives are agents, यानी कि वो कौन से एजेंट्स हैं that quicken and increase evacuation of fecal matter from the bowels. bowel से fecal matter के evacuation को वो increase कर देते हैं। वो कौन से compounds होते हैं? आपको चार ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर। कैथार्टिक्स, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कौन से एजेंट्स होते हैं
जो क्विक कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इवैक्यूएशन ऑफ फेकल मैटर फ्रॉम बॉवेल्स। तो जब आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन कंपाउंड्स को कैथार्टिक्स बोला जाता है। कैथार्टिक्स आर एजेंट्स दैट क्विकन and increase evacuation of fecal matter from bowels. So option number A is the correct answer. In the next question, Royke salt is the synonym of. Royke salt is the synonym of. यहाँ पर आपको एक सिनोनियम दिया गया है रॉके सॉल्ट, आपको इसका बताना है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रॉके सॉल्ट। तो आप देख सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए इस वाले क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम कार्बोनेट गलत आंसर, hydrated aluminum silicate, it is also not the right answer, aluminium phosphate, and last option is sodium potassium tartrate। जिन सब ने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा, थ्योरी की क्लासेस में देखा होगा कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट is also known as Rochelle salt। So the correct option is option number D। Coming to the next question, magnesium sulfate is used as cathartics which is incompatible with। मैग्नीशियम सल्फेट आपके जीआईटी एजेंट्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर एक कंपाउंड है दैट इज इनकम्पेटेबल विद। वो किस चीज के साथ इनकम्पेटिबल है आपको ही बताना है। स्टोरेज के टाइम पर इनकम्पेटेबिलिटी ध्यान में रखी जाती है। आपके फार्मकेम 1 सिलेबस में इनकम्पेटेबिलिटीज पर भी काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट, आप क्वेश्चन एक बार फिर से देखें कि मैग्नीशियम सल्फेट is used as cathartics which is incompatible with। वो किस चीज के साथ में incompatible है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए, आपको चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज एसिडिक कार्बोनेट्स, सेकंड ऑप्शन इज एल्कली कार्बोनेट्स एंड ब्रोमाइड्स, थर्ड ऑप्शन इज ट्राइसिलिकेट्स एंड लास्ट ऑप्शन इज एंटासिड्स एंड डेंटल प्रोडक्ट्स। तो मैग्नीशियम सल्फेट किस चीज के साथ में इनकम्पेटेबल है आप देख सकते हैं कि एल्कली कार्बोनेट्स एंड ब्रोमाइड्स is the correct option for question number 19। Magnesium sulfate is incompatible with alkali carbonates and bromides, specifically ammonium bromide। So this is the last MCQ। We will also meet in the next video with another topic on the PharmChem 1 syllabus। Thank you for listening।